Okay, I'm going to start with a simpler chapter from 11th syllabus, that's chemical equilibrium. So first of all, when we think about the word equilibrium, what strikes your mind? Equilibrium. equal sides, equal part. दोनों तरफ इक्वल हो जाना, yes. We can call it as a condition of stability since both the side the balancing is being done. तो यहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड्स जो आपके दिमाग में आने चाहिए इक्विलिब्रियम को लेकर. इट इज समथिंग रिलेटेड विथ स्टेबिलिटी, समथिंग इन रिलेशन टू इक्वालिटी. ठीक है. अब when we talk about the types of equilibrium, let's understand with the examples. So if I have water which is enclosed in an open container और उस वाटर को मैं हीट कर देता हूं, so we know that the water molecules have the tendency to evaporate. Now अगर उस कंटेनर को ओपन रखा तो जो वाटर का वेपर्स है that will escape into the atmosphere. But if I close that container, then the vapors of the water will be trapped inside the container. And over a period of time क्या होगा, जो वाटर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स है और जो वाटर के वेपर्स है, they will have the same rate. So at the point when the rate of evaporation and the rate of condensation become equal, we say an equilibrium is established. So that equilibrium can be represented as H2O liquid in equilibrium with H2O gaseous. Okay. Such type of equilibrium which is established between the physical states of the same substance is called physical equilibrium. Next, Haber's process is the manufacture of ammonia from the nitrogen and hydrogen in the ratio 1:3. So N2 and H2 gas reversibly gives you ammonia. Now this particular process is also reversible, and since it is established between the chemical reactants and the products, ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ठीक है. And if I have some weak substance which is partially getting dissociated, जैसे अपना वीक एसिड हो या वीक बेस हो, तो हमें पता है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता है. तो पार्शियल डिसोसिएट जब होगा तो इट इज इंडिकेटेड बाय दिस रिवर्सिबिलिटी साइन एंड इट गिव्स एसिटेट आयन एंड द H plus ions. तो ऐसा इक्विलिब्रियम विच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन undissociated molecules and the dissociated ions is called ionic equilibrium. So basically, we have physical equilibrium, which is established for physical states of the same substance, chemical equilibrium for a chemical reaction, ionic equilibrium for the weak electrolytes. It can be a weak acid or a weak base. Okay. Now, if you look at these examples, there are two persons who are trying to move a piece of block and they are having equal force applied on that block. तो अगर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक जो है विल इट मूव और इट विल रिमेन स्टेशनरी. ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू रिमेन स्टेशनरी. सिमिलरली यहाँ पर एक डोर है जहां पर इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहा है दोनों साइड से, तो ये डोर भी अपनी जगह पे रहेगा, ये स्टेशनरी होगा. यहाँ पर टग ऑफ वॉर हो रहा है जहां पर दो पर्सन और एक पर्सन के बीच में ये रोप खींचने का कंपटीशन. Now again the forces applied from both the sides is equal, so this rope is not going to actually move, and in this case also it is going to remain stationary. ये एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है जहां पर a person is trying to move upwards whereas the escalator is actually moving down, and if their speeds are equal, मतलब person is moving with the same speed as the speed of escalator moving down, then अपने नजरिए में this person will actually remain
स्टेशनरी the same place. एट द सेम प्लेस, मतलब एक्चुअली ये ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन एस्केलेटर नीचे की तरफ आ रहा है विद द सेम स्पीड। तो अपने नजरिए से देखोगे तो ही विल एक्चुअली अपीयर टू बी एट रेस्ट, बट एक्चुअल देखोगे तो यहाँ पर मूवमेंट तो हो रहा है, पर्सन ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन जहां पर द मूवमेंट इज स्टिल existing but since the speeds are equal and opposite in direction, in this case there will be an equilibrium which will be dynamic in nature। यहां पर जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, डायनामिक, जहां पर मूवमेंट स्टॉप नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारे इक्विलिब्रियम जो है दे विल बी एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कोई भी केमिकल प्रोसेस की अगर बात करें विच हैपेंस फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, in that case the reactants keep reacting to form the products and the products decompose back to give the reactants, मतलब the reactions is happening in the opposite direction but they are actually happening at the same rate, that is why we say there is an equilibrium established between the reactants and the products। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम हमारे फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस में होते हैं ये सारे डायनामिक होते हैं, दे आर ऑल डायनामिक इन नेचर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Now we know that when calcium carbonate is strongly heated, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide। CaCO3 डिकम्पोज करके CaO और CO2 बनाता है। अब यहां पर पूछा है इफ दिस रिएक्शन is carried out in a closed container or open container, what do we observe? तो सबसे पहले अगर ओपन कंटेनर में इस रिएक्शन को किया जाए, what will be the observation? Calcium carbonate is decomposing to give quicklime and CO2 and reaction is taking place in an open container. What is going to happen? Will the CaCO3 decompose completely in this case? Yes. Yes, because यहाँ पर CO2 जो है जैसे जैसे बन रहा है it is getting escaped into the atmosphere और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पूरी तरह से it is actually on the right side, मतलब it will decompose completely। तो 100 ग्राम का CaCO3 अगर हीट करते हैं ओपन कंटेनर में, पूरा 100 ग्राम completely decompose होकर it will give you 56 gram of calcium oxide and 44 gram of CO2। But now, if I carry out the same reaction of decomposition of CaCO3 in a closed vessel, अब क्या होगा closed vessel में? It won't decompose completely. It won't decompose completely, correct? Because जो CO2 escape हो रहा था वो अब closed container में trap हो चुका है। So this CO2 now will have the tendency to combine with the quicklime and form the calcium carbonate back, मतलब it will drive the reaction in the reverse reaction। ठीक है, अब जैसे जैसे हीट कर रहे हैं CaCO3 डिकम्पोज कर रहा है और जैसे जैसे CO2 बन रहा है वापस CaCO3 फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों रिएक्शंस जो हुए हैं वो रिवर्सिबली हो रहे हैं। बराबर, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर द रेट at which CaCO3 decomposes and the rate at which the CaCO3 is getting formed will become equal। In such a scenario, when the rates become equal, we say the equilibrium is established। So from this particular example, tell me, to establish equilibrium, what type of reaction is required? Irreversible or reversible? So can you repeat the question again? To establish equilibrium, what kind of reaction is required? Will it happen for irreversible reaction or reversible reaction? Reversible. Reversible.
इरिवर्सिबल में कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए पहला कंडीशन है अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, द रिएक्शन शुड टेक प्लेस इन एन ओपन कंटेनर और अ क्लोज्ड कंटेनर। Close. इन अ क्लोज्ड कंटेनर। जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है वो स्टैटिक होता है कि डायनामिक होता है? Dynamic. Dynamic. मतलब the moment now we talk about chemical equilibrium or ionic equilibrium or even physical equilibrium, three things are very important. First, the equilibrium can be established only for the reversible reaction, and that is achieved when the reaction is carried out in a closed container. और क्लोज्ड कंटेनर की अगर बात करें, मतलब वॉल्यूम हमने फिक्स रख दिया है और वॉल्यूम कांस्टेंट अगर होता है तो रिएक्शन को आइसोकोरिक बोलते हैं या कंडीशन को आइसोकोरिक कंडीशन बोलते हैं। एंड इक्विलिब्रियम जब भी एस्टैब्लिश होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है, मतलब दिस विल बी एन आइसोथर्मल कंडीशन। And remember, if the temperature is changed, then the equilibrium is also changed. Equilibrium सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो सकता है, otherwise the other factors do not change the equilibrium. And thirdly, the reactions do not cease or stop taking place. They still will be taking place, but since they are taking place in the opposite direction with the same rate, the type of the equilibrium here will always be dynamic equilibrium. ठीक है? एंड कंडीशन क्या हमने देखा? द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन शुड बिकम इक्वल। अब एक क्वेश्चन, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है और रेट सेम हो जाता है, तो डू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स and the concentration of the products in the closed container become equal? Do the concentration of the reactants and the concentration of the products in the closed container become equal at equilibrium? No. जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसका डायरेक्शन किसकी तरफ है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाते हैं बट इक्वल कभी नहीं होते हैं। मतलब द रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विद टाइम, बट इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब पॉइंट नंबर 5, at equilibrium the concentration of reactants and products become constant। इक्वल हो सकते हैं लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। the concentrations become constant, they may or may not be equal, that is important। clear? Yes, sir. So this was the example which we had discussed, that CaCO3 in an open container will decompose completely. It will be an irreversible reaction, and CaCO3 in a closed container will actually have a reversible reaction possible. And under that scenario, the equilibrium gets established, which is dynamic in nature. And at equilibrium, the rates become equal and the concentration become constant. It may or may not be equal in all the cases. Understood? Yes, sir. So now, equilibrium in physical processes. तो जो physical equilibrium होता है वो 3 टाइप का हो सकता है। It can be a liquid vapor equilibrium, wherein we have the example of H2O liquid and H2O gaseous. वैसे ही हमारे पास solid liquid equilibrium हो सकता है। The example is simple, H2O solid यानी ice in equilibrium with the water, and इस equilibrium point का जो temperature है that is the melting point।
मतलब दिस विल हैपन एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जो लिक्विड वेपर का पानी का इक्विलिब्रियम है ऑब्वियसली वो मेल्टिंग पॉइंट रिलेटेड होगा एंड दैट विल बी एट 100 डिग्री सेल्सियस। एंड सॉलिड वेपर का इक्विलिब्रियम इज जनरली एस्टैब्लिश्ड फॉर सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। तो सब्लिमेबल सब्सटेंसेस में एक कॉमन एग्जांपल है I2 सॉलिड विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर। और जो I2 के वेपर्स होते हैं वो वायलेट कलर के होते हैं। सिमिलरली सब्लिमेबल बोला तो कैम्फर, नेफ्थलीन, ये सारे एग्जांपल हैं। तो कैम्फर सॉलिड विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द कैम्फर गैसियस। So such type of equilibrium which is established between solid and gaseous state is called solid vapor equilibrium. तो physical equilibrium के further 3 types हो सकते हैं। उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस में जो इक्विलिब्रियम होता है दैट्स केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उसका एक और कॉमन एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस के अलावा N2O4 gaseous which is colorless getting converted into NO2 gaseous which is reddish brown in color। ठीक है, तो इनिशियली N2O4 गैसियस को अगर कोई फ्लास्क में ले ले, ठीक है, तो जैसे जैसे वो डिकम्पोज होगा देयर विल बी अ रेडिश ब्राउन वेपर्स व्हिच विल गेट अपीयर्ड इन द फ्लास्क। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा वहां पर दिस पर्टिकुलर कलर विल गो ऑन फेडिंग बिकॉज नाउ NO2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू N2O4 बैक। तो पहले जो कलर है रेडिश ब्राउन वो इंटेंस रहेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फेंट हो जाएगा। At that point, we can say the equilibrium has established. एक और एग्जांपल HI का डिकम्पोजिशन which gives you H2 and I2 gaseous जो वायलेट कलर्ड होते हैं। तो अगेन इनिशियली अगर HI को डिकम्पोज करते देखे तो देयर विल बी वायलेट वेपर्स इन द क्लोज्ड कंटेनर, बट जैसे जैसे रिवर्स हो जाएगा द कलर of the gaseous iodine vapors will become faint, similar to the previous example. So these are examples of chemical equilibrium. Now ionic equilibrium is completely a separate chapter जिसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन के रिलेटेड बात करेंगे। Now look at this graph. If I have concentration plotted versus time, at time t equal to 0, we know that the reactants का concentration will be maximum. इनिशियली एट द स्टार्ट प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट जो आप ऑरेंज लाइन से देख रहे हो वो 0 रहेगा। नाउ एज द टाइम प्रोसीड्स द रिएक्टेंट्स विल स्टार्ट डीकंपोजिंग, सो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब जैसे रिएक्टेंट डीकंपोज होते जाएगा द प्रोडक्ट विल स्टार्ट गेटिंग फॉर्म्ड एंड हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हो ग्राफ में द ब्लू लाइन which is concentration of the reactants which is going on decreasing and the orange line indicating the concentration of NO2 is going on increasing. अब इस टाइम के बाद आप देख सकते हो the concentration of both reactants and products are becoming constant. Are they becoming equal? No. No. तो concentration यहाँ पर कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ऐसा टाइम जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं एट दैट पॉइंट वी से इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। बट अगर हम ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम को प्लॉट करें, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट द रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज गिवन बाय kf into N2O4, आई विल कम टू दिस, एंड ये kb होना चाहिए। The rate for the backward reaction are becoming equal. तो एक पॉइंट के बाद ये जब इक्वल हो जाएगा we will say that the equilibrium is achieved. तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होते हैं, रेट्स इक्वल होता है। ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, रेट इक्वल होता है। तो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इफ आई हैव अ ग्राफ of concentration versus time, तो initially reactant max होगा, as the time proceeds the concentration of the reactants will go on decreasing।
ठीक है, एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इस टाइम के बाद हम देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन इज दिस द करेक्ट ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम? इज दिस ग्राफ करेक्ट, हाँ या ना? No, हाँ, it's not correct. why it is not correct? What was the condition for the concentration at equilibrium? Become constant. तो इस टाइम के बाद ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट का है, और इस टाइम के बाद आप देख सकते हो कांस्टेंट हो जा रहा है। इक्वल होने का कंडीशन नहीं बोला था, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ करेक्ट है कि नहीं है? Correct. ऑब्वियसली करेक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। सिमिलरली एक और ग्राफ मान लो ऐसा दिया, जहां पर ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है, ठीक है, और इस टाइम के बाद दोनों लाइंस मीट हो रहा है। अब इस केस में वो कांस्टेंट तो है ही, लेकिन इक्वल भी हो जा रहा है, तो ये वाला ग्राफ भी करेक्ट रहेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में बेसिकली कोई भी ग्राफ हो वो करेक्ट होगा इन अ कंडीशन दैट द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम बिकम्स कांस्टेंट। बट रेट वर्सेस टाइम का एक ही ग्राफ करेक्ट होगा, और वो ग्राफ होगा व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ द बैकवर्ड बिकम इक्वल। तो यहाँ पर रेट्स इक्वल होने चाहिए बट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने चाहिए। तो सिर्फ 5 चीजें याद रखो फॉर इक्विलिब्रियम, and these are the most important 5 pointers for equilibrium understanding. Equilibrium is applicable only for a reversible reaction taking place in a closed container, and it's dynamic in nature. At equilibrium the rates become equal but concentration become constant. It may or may not be equal. समझता है इक्वल और कांस्टेंट का मतलब? तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में मल्टीपल ग्राफ करेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ कंडीशन इतना है कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के बाद एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाना चाहिए। बट रेट वर्सेस टाइम का एक ही ग्राफ करेक्ट है, एंड दिस इज दिस, ओनली वन ग्राफ। अंडरस्टूड? Yes. Now comes the important part of this chapter, the law of mass action and equilibrium constant. So mathematically equilibrium कौन से direction में है? What are the concentration of the reactants products? It can be understood and calculated by using a parameter called equilibrium constant. अब ये derive कैसे करते हैं? So let's take the example of Haber's process. N2 gaseous plus 3H2 reversibly giving you twice of NH3. Now for a reverse reaction, reactant to products will be the forward reaction, which is formation of ammonia, and ammonia का decomposition will be backward reaction. ठीक है? अब law of mass action क्या बोलता है? The law of mass action states that the rate of any reaction is directly proportional to the concentration of reactants raised to the power which is equal to its stoichiometric coefficient. किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, बिकॉज जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करना शुरू होगा तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, एंड दैट इज रेज टू अ पावर विच इज इक्वल टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 1, 3 and 2 रिस्पेक्टिवली फॉर हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को देखूं तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will be dependent या directly proportional on to the concentration of
रिएक्टेंट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स N2 और H2 है, so it's proportional to N2 and H2 raised to the power which is equal to stoichiometric coefficient 1 and 3. अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो वी गेट RF इक्वल टू KF इंटू N2 इंटू H2 का क्यूब, और इस KF को बोलते हैं रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली द रेट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ammonia, and the stoichiometry is 2. Therefore, RB will be equal to KB into NH3 का स्क्वायर, और A KB को यहां पर बोलेंगे द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब मुझे बताओ एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द कंडीशन? The rate of the forward and the rate of the backward reaction become equal. So here I get Kf into N2 H2 का cube becoming equal to Kb into NH3 का square. अब यहाँ पर Kf और Kb दोनों ही constant है, तो I can take the ratio of this constant. So here I get Kf upon Kb equals to ammonia concentration का square upon N2 का concentration raised to 1 and H2 का concentration raised to 3. सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स है, RF इक्वल टू RB किया और KF और KB कॉन्स्टेंट्स है तो उसका रेशियो लिया. Now this ratio of the rate constants actually gives you the equilibrium constant K, which is described as Kc. यहाँ पर C का मतलब होता है the equilibrium constant in terms of concentration. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है that is equal to the rate constant of the forward reaction to the rate constant of the backward reaction. This is the definition for equilibrium constant. And the equilibrium constant is written as the concentration of the product upon the concentration of all the reactants raised to the power which is equal to stoichiometric coefficient. ये मैंने जनरलाइज कर दिया दोनों कॉन्सेप्ट्स को. क्लियर यहां तक? So if you are given the rate constants for forward and backward reaction, the equilibrium constant is simply equal to ratio of Kf by Kb, and for a reaction it's equal to the ratio of product concentration to reactant concentration raised to the stoichiometric coefficient x and y. अब जैसा ये Kc है वैसे Kp भी लिखते हैं, where P indicates the partial pressures. P indicates the partial pressure. So now instead of the concentration, we have partial pressure of the product ammonia upon partial pressure of the reactant nitrogen and hydrogen raised to the power equal to the stoichiometric coefficient. Exactly same ratio है, बट खाली concentration की जगह partial pressure लिख दिया है. ठीक है. अब Kp और Kc में रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो प्रेशर एंड कंसंट्रेशन का रिलेशन कैन बी अंडरस्टूड फॉर द गैसेस एंड it can be understood through the ideal gas equation considering the gases to be ideal. अब यहाँ पर equilibrium constant is described only for the gaseous and the aqueous components. For pure solids and liquids, we never ever consider the concentration or the partial pressures. अब इसके पीछे भी एक रीजन है, पहले वो रीजन समझ लो उसके बाद आगे बताता हूँ. If the solids and liquids are pure, मतलब जैसे CaCO3 सॉलिड की हमने बात की यहाँ पर डिकम्पोजिशन में, है ना, I2 सॉलिड का बात कर लिया, तो ऐसे अगर प्योर सॉलिड्स रहेंगे तो इफ आई टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन,
We know it is given as number of moles per unit volume. Number of moles in turn is given mass upon molar mass into 1 by the volume. Now weight by volume जो है that is equal to density. मतलब concentration basically density over molar mass हो जाता है. ठीक है. अब कोई भी solid substance अगर लेते हैं तो is there a density which can change? मतलब can the density of a solid change or it remains fixed? Fixed. Fixed. Solids का डेंसिटी इवन लिक्विड्स का डेंसिटी चेंज नहीं होता है. तो अगर डेंसिटी चेंज नहीं होगा तो ये रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा. मतलब बेसिकली आई कैन से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड एक्चुअली ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं होता है तो इक्विलिब्रियम पे सॉलिड और लिक्विड का कोई फर्क नहीं पड़ता है. Because for an equilibrium to establish, the concentration must change with time. And if the concentration is not changing, it will not have any effect on equilibrium. That is the reason जब यहाँ पर हम concentrations का ratio या partial pressure का ratio लेते हैं, हम सिर्फ gases को consider करते हैं. Only gases. समझा? Yes. So for example, if I have the decomposition of calcium carbonate, tell me what will be the Kc relation for this particular reversible reaction? Meaning what will be the equilibrium constant dependent on? Carbon dioxide concentration. Only carbon dioxide. Because calcium carbonate solid और calcium oxide solid concentration change ही नहीं होता है इसका. ठीक है. तो इसका Kc जो है that will be dependent only on concentration of CO2 या फिर Kp जो है that will only be dependent on the partial pressure of CO2. समझ में आया ये? अब Kp और Kc का रिलेशन समझ लेते हैं. So for that we will use the gaseous equation that is PV equal to nRT, wherein if I take the volume down, I can write N by V into RT, and the number of moles per unit volume is nothing but concentration. So partial pressure जो है that is equal to concentration into RT. P equal to CRT भी लिख सकते हैं. तो अब Kp का जो एक्सप्रेशन था हेबर्स प्रोसेस के लिए हमने क्या लिखा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का रेज़ टू 1 और 3. Now the partial pressure is equal to concentration into RT. तो concentration of ammonia into RT the whole square upon नीचे आएगा concentration of N2 into RT और हाइड्रोजन के लिए concentration of hydrogen into RT raised to 1 raised to 3. अब सिंपल मैथमेटिक्स है. concentration टर्म्स को मैं निकाल देता हूं. अमोनिया का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन into हाइड्रोजन raised to 1 and 3 into RT वाले टर्म को अगर देखो तो ऊपर 2 है, नीचे ये raised to 1 और raised to 3 when they are multiplied क्या हो जाएगा इंडाइसिस के हिसाब से? मल्टीप्लाइड है यानी ये ऐड हो जाएगा और जब डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. मतलब इट विल बी 2 माइनस 4. मतलब फाइनली अगर यहाँ पर देखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म आ रहा है दैट इज नथिंग बट Kc. देयरफॉर Kp will be equal to Kc into RT raised to -2. This is the relation between Kp and Kc. तो अगर कोई न्यूमेरिकल में Kc दिया और Kp ढूंढना है तो सिंपली सब्स्टिट्यूट Kc into RT raised to -2. अब ये -2 जो है दैट इज बेसिकली
the difference in the moles of the products to the moles of the reactants. मतलब हेबर्स प्रोसेस में रिएक्टेंट्स के टोटल मोल्स अगर चेक करो तो 4 मोल है, और प्रोडक्ट के मोल्स चेक करेंगे तो 2 मोल्स है कि नहीं। और 2 - 4 जो है वो बेसिकली मोल्स का डिफरेंस है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। इसी मोल्स के डिफरेंस को हम डेल्टा एन जी बोलते हैं, डेल्टा एन जी। तो इन जनरल केपी और केसी का रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट विल बी इक्वल टू केसी इनटू आरटी रेज टू डेल्टा एन जी, RT raised to delta Ng, where delta Ng is basically the number of moles of the products in the gaseous state only minus number of moles of the reactants in the gaseous state. समझा? And if I talk about the unit of equilibrium constant, so it will be dependent on the ratio. तो यहाँ पर सारे concentration के terms है, और अगर आप indices को लोगे तो it will have a power raised to 2. मतलब the unit over here will be concentration raised to -2, या फिर it will be mole per dm cube raised to -2, या molar raised to -2 भी लिख सकते हैं। तो in general the unit of equilibrium constant will be concentration raised to -2 का वैल्यू क्या है? डेल्टा एन जी, या फिर अगर पार्शियल प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेयर रेस टू डेल्टा एन जी। क्लियर है ये? मतलब अब सारी चीजें जो है ना डेल्टा एन जी के ऊपर डिपेंड हो जाती है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स रिलेटेड विद दैट। तो केपी केसी का रिलेशन बता चुका हूं, इट्स केपी इक्वल टू केसी इनटू आरटी रेस टू डेल्टा एन जी। So let's take the example of N2O4 gaseous reversibly giving you 2NO2 in a closed container. So here the Kp is equal to Kc into RT raised to what? One. 1, because 2 - 1 का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए व्हाट इज डेल्टा एन जी? Zero. 0। Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू 0, और ऐसे केसेस में Kp और Kc हमेशा इक्वल हो जाएंगे under a condition when delta Ng is equal to 0. Here, दूसरी बात, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? के इक्विलिब्रियम No unit. इट विल हैव अ यूनिट। फर्स्ट केस में बात कर रहा हूं, फर्स्ट द यूनिट इज कॉन्सेंट्रेशन रेज टू डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी 1 है तो यूनिट होगा ना कॉन्सेंट्रेशन का, मोल पर डीएम क्यूब। बट जब डेल्टा एन जी होगा इक्वल टू 0, तो इस केस में द यूनिट विल बी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 0 विच विल बी 1। मतलब इस केस में इट विल बी यूनिटलेस। The equilibrium constant will have no units only when delta Ng is equal to 0. Clear? अब यहां पर कुछ क्वेश्चन समझते हैं। Let's say I have A and B in equilibrium. What will be its K equilibrium equal to?
concentration of products upon the reactants B by A. अब अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, what will be the new equilibrium constant? Will it be same or it will change? Now the equilibrium constant is A by B. So if I compare it with this equilibrium constant, what has happened when the reaction is reversed? Reciprocal. So case 1, when the reaction is reversed, its equilibrium constant becomes reciprocate. Reciprocal हो गया. ठीक है. अगर मैं इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो क्या होगा? विथ रिगार्ड्स टू दिस एज रेफरेंस, multiplied by 2. Now it will be b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर. तो इसके हिसाब से क्या करेंगे? स्क्वायर हो जाएगा. मतलब whenever a reaction is multiplied by 2, its equilibrium constant is raised to that particular number. 3 से मल्टीप्लाई किया क्यूब हो जाएगा. 1.5 से मल्टीप्लाई किया रेज टू 1.5 हो जाएगा. अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइड कर देता हूं, हाफ मोल ऑफ ए गैसियस गिविंग यू हाफ मोल ऑफ बी, तो क्या होगा? Square root. स्क्वायर रूट. मतलब द इक्विलिब्रियम विल बी रेज्ड टू द पावर हाफ, स्क्वायर रूट हो जाएगा. अगर इसको डिवाइड बाय 3 किया तो 1/3 हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा. ठीक है. मतलब द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्टली चेंजेस विद टेम्परेचर and secondly it changes when the stoichiometry is changed or the reaction is reversed. अगर आपने रिएक्शन रिवर्स किया या स्टोइशियोमेट्री में गड़बड़ी किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है. कैसे चेंज होता है? इफ रिवर्स्ड इट बिकम्स रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2, डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर हाफ. ठीक है. अब मान लो मैंने रिवर्स किया और 3 से डिवाइड भी किया, रिवर्स किया और 3 से डिवाइड भी किया, अब क्या होगा? Reversed and divide by 3. Cube root of reciprocal. Reciprocal and cube root. Perfect. क्योंकि रिवर्स किया तो क्यूब रूट, सॉरी रेसिप्रोकल हो गया. एंड डिवाइड बाय 3 के लिए रेज टू पावर 1/3. मतलब बेसिकली इट विल बी 1 अपॉन द क्यूब रूट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. खत्म. अंडरस्टूड? यस. Yes. Now equilibrium constant जो है that was equal to kf upon kb. What was this kf called? Rate of forward. Forward, yeah. Not rate of forward reaction. Rate of forward reaction तो RF को बोलते थे. RF equal to KF into concentration of the reactants raised to the power X. तो ये KF को क्या बोला था? रेट कांस्टेंट है. ये रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं. रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट? Now this rate constant can be defined with regards to chemical kinetics. Now chemical kinetics हमने discuss नहीं किया अभी तक, but when we come to chemical kinetics, there is an expression which is given by Arrhenius for the rate constant. And according to Arrhenius equation, the rate constant K is equal to A into e raised to minus EA by RT, where A is any constant called Arrhenius factor, E exponential term है,
ईए को क्या बोलते हैं? व्हाट इज ईए फॉर अ रिएक्शन? ये तो Activation. पढ़ा है। ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो एक रिएक्शन है लाइक दिस, ठीक है? तो कोई भी रिएक्शन, the amount of energy which is required by the reactant to reach the transition state, which is the state between the reactants and the products, that energy is called as the activation energy. तो ये होगा EA। अब ये फॉरवर्ड में जाएगा तो EAF बोलेंगे। बैकवर्ड अगर रिएक्शन हो रिवर्सिबल के केस में, तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक होगा। रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट फॉरवर्ड का होगा एंड प्रोडक्ट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट बैकवर्ड का होगा। अब मुझे बताओ, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो इट इज बेसिकली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। व्हाट इज दिस एनर्जी डिफरेंस कॉल्ड? द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। इसको बोलते हैं एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। और इसी से पता चलता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब ये ग्राफ को देखकर बताओ, इज दिस रिएक्शन एंडो और एक्सो? Exosomes. क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो दिस इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इस एनर्जी लेवल को मैं ऊपर लेकर आ जाता हूं तो दैट विल बिकम एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसी के बेसिस पे डेल्टा एच नेगेटिव या पॉजिटिव से हमें पता चलता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ठीक है? तो रेट कांस्टेंट जो है ना, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, इट्स गिवन एज ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पर ए तो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है? तो अब अगर मैं इस रेशियो को मैथमेटिकली देखूं तो के एफ कैन बी रिटन एज ए एफ, मतलब द आरएनएस फैक्टर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ई रेस टू माइनस ई एफ बाय आर टी। टी तो फिक्स ही रहेगा बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो टी सेम रहेगा। और यहां पर ए बी बैकवर्ड रिएक्शन, ई रेस टू माइनस ई ए बी अपॉन आर टी। क्लियर है? Now this is the ratio of the constants. So I will replace it by another constant, which in this case is written as z. And then आगे e raised to minus 1 by rt कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 by rt कॉमन लिया तो ऊपर ई ए एफ आएगा एंड दिस माइनस ऊपर जाके विल बिकम प्लस। तो यहां पर अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो कैन आई राइट माइनस ई ए बी? मैथ्स है। माइनस 1 बाई आर टी कॉमन एंड ई एफ माइनस ई ए बी डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां देखोगे तो ई एफ और ई ए बी का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया है, इट्स गिवन एज z into e raised to minus of enthalpy change upon RT, minus enthalpy change upon RT. This is a very important expression. अब इससे दो केसेस इंपॉर्टेंट है। केस वन, लेट्स से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो माइनस ऑफ डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो अगर मैं टेम्परेचर को फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज करता हूं तो डेल्टा एच ओवर आर टी द होल टर्म विल इंक्रीज और डिक्रीज?
नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच को अगर साथ में ले लूं तो माइनस ऑफ डेल्टा एच तो पॉजिटिव हो चुका है. अब दिस पॉजिटिव टर्म अपॉन आर टी व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड विल ओवरऑल decrease. डिक्रीज. और अगर ये पूरा टर्म डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपोनेंशियली टर्म डिक्रीज होगा. अगर वो डिक्रीज होगा तो के इक्विलिब्रियम भी डिक्रीज होगा. मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या होगा? आंसर इज इट विल डिक्रीज. और केस 2, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो दिस टर्म विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन आर टी, this term because of the negative sign will increase and thereby the equilibrium constant will increase. मतलब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस टू केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं डायरेक्ट भी दे सकता था लेकिन मैंने काइनेटिक्स के थ्रू इसको डिराइव करवाया है एंड एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस किया है. एंड देन द टू केसेस ऑफ एक्सो एंड एंडो. क्लियर यहां तक एवरीवन? Yes, sir. ओके. सो यहां तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए. अब इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर आता हूं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ वंस अगेन अ सिंपल एग्जांपल. एंड let's say I take N2O4 gaseous decomposing to give 2NO2 gaseous. Now let's say at time t equal to 0, matlab at the start, the concentration of N2O4 was A molar. There was A molar amount of या concentration of N2O4 at the start. ठीक है. अब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाला है तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट द स्टार्ट? 0. 0. अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, लेट्स से N2O4 dissociates to the extent of 40%, and that extent of dissociation in general is identified by alpha. मतलब इसका अल्फा अमाउंट जो है वो डिसोसिएट होता है. So if alpha amount is getting dissociated, how much amount of NO2 will be formed? कितना बनेगा? 2 alpha. 2 alpha. बस one thing is missing. It will be 2 alpha times initial concentration ना. अगर मैं इनिशियली 1 मोलर लेता तो आप 2 अल्फा डायरेक्टली बोल सकते थे बिकॉज 2 अल्फा इंटू 1 होता. अब इनिशियली ए है, उस ए का 40% यानी अल्फा परसेंट डिसोसिएट होगा तो ए अल्फा बनेगा. लेकिन 1N2O4 के लिए ट्वाइस NO2 बन रहा है, इसीलिए वो स्टोइशियोमेट्री मल्टीप्लाई हो रहा है. मतलब बेसिकली यहां पर ये ए मल्टीप्लाई होगा. समझा? मतलब चलो ए की जगह लेट मी गिव यू 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो अब ये 2 मोलर का 40% कितना होता है? 2 मोलर का 40% कितना होता है? 0.8. 0.8. तो हमने क्या किया? 2 इंटू 0.4. 2 इंटू 0.4. और जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और सॉरी और ये जो डबल अमाउंट ऑफ NO2 बन रहा है वो भी मल्टीप्लाई होगा. तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का 0.4 मल्टीप्लाइड एंड ये डबल भी तो स्टोइशियोमेट्री लेना पड़ेगा.
इसीलिए मैंने इसको जनरलाइज क्या किया कि अगर मेरे पास ए मोलार कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका सबसे पहले डबल बनेगा, और अगर ये पूरा का पूरा नहीं टूटता है तो अल्फा टाइम्स बनेगा, तो 2a अल्फा आएगा। तो अब अगर ये 2a अल्फा बना तो ये कितना घटा, हाउ मच इट इज डिक्रीज्ड? आफ्टर टाइम t, अगर ये 2a अल्फा बनेगा तो ये a अल्फा घटेगा, एंड फाइनली जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो द कॉन्सेंट्रेशन विल बी a माइनस a अल्फा एंड दिस विल बी 2a अल्फा। फाइनली यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका फाइंड करने बोला Kc, तो इट विल बी 2a अल्फा concentration squared upon a minus a alpha raised to 1. So now if a and alpha value is given, just substitute over here and you will get the Kc expression. समझा? So why did it become minus a alpha? Because after a time t, N2O4 का concentration will go on decreasing ना, तो इनिशियली a था, अब उससे 2a अल्फा अगर वो बना तो it will decrease by the proportion of a अल्फा, will decrease because अगर 40% dissociate हो रहा है तो can I say 60% remains undissociated? Yes. So अगर 1 इनिशियल है या 100 है, उसमें से 40 गया तो बचा कितना? 60. So how that 60 has come? 100 minus 40 ना? Yes, got it. So this is 100, उसमें से 40 गया तो बचा कितना इक्विलिब्रियम पे? 100 minus 40. That's what I have done. क्लियर है? Yes. अब let's take this to the Haber's process example. N2 plus 3H2 reversibly giving you 2 moles of ammonia. And this particular reaction is carried out in a 2-liter container. Volume 2 liters दिया है. अब initially let's say there is 1 mole. अब concentration नहीं बोल रहा हूं मैं. I am telling 1 mole. 1 mole of N2 is present and 3 mole of H2 is present. And alpha is given to be equal to 20%. अब ध्यान देना how to arrive at this particular equilibrium value, because the moment you come to the equilibrium value you can find out the equilibrium constant and all the associated details could be found out. So now how will you prepare this table? ये 1 mole है, ये 3 mole है, तो अमोनिया at the start initially कितना होगा? 0. अब चेंज की बात करते हैं, तो सबसे पहले अमोनिया कितना बनेगा? Let's look at this. I have 1 mole of nitrogen with 3 moles of hydrogen as required. एक नाइट्रोजन के लिए 3 गुना हाइड्रोजन चाहिए, तो अमोनिया जो बनेगा वो ट्वाइस बनेगा. तो how much ammonia would be formed? ऊपर मैंने A से शुरू किया तो डबल NO2 बना तो 2A, और अल्फा टाइम डिसोसिएट कर रहा है तो अल्फा मल्टीप्लाई किया. अब मैं 1 से शुरू कर रहा हूं तो हाउ मच अमोनिया वुड बी फॉर्म्ड विथ अल्फा इक्वल टू 20%?
2 into 20%. 2 into 0.2, 1 का 20% 0.2 होता है और उसका डबल करना पड़ेगा. सो इट विल बी 2 into ये 1 मोल ही था into 0.2. So this is how I am arriving at 2a alpha. ये जनरलाइज किया है, अब मैंने आपको वैल्यूज के साथ बता रहा हूं. ठीक है, तो हाउ मच अमोनिया विल बी डिक्रीज नाउ, बाय व्हाट फैक्टर? अगर ये -0.2. -0.2 से घटेगा और ये -0.6. -0.6. तो बेसिकली अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो ये हो जाएगा +2 अल्फा, ये हो जाएगा -1 अल्फा, ये हो जाएगा -3 अल्फा. तो फाइनली इक्विलिब्रियम पे दिस विल बी 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी 3 - 3 अल्फा एंड दिस विल बी 2 अल्फा. Meaning this will be 1 minus 0.2, 0.8, this will be 3 minus 3 alpha, यानी 2.4 and this will be 0.4. तो ये जो मैंने बनाया दिस इज कॉल्ड आई स्टेबल. आई स्टेबल मतलब इनिशियल चेंज एंड इक्विलिब्रियम. ये बनाने आ गया मतलब सारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व है. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द Kc का रेशियो इक्वल टू. Will I substitute these values directly? Raised to the coefficient. रेस टू कोएफिशिएंट तो करना ही है, मतलब 0.8 रेस टू 1, 2.4 रेस टू 3 एंड 0.4 रेस टू 2. इज दैट करेक्ट? 1 minus 0.8. 1 minus 0.8. So because A minus A alpha. वो तो कर दिया ना. 1 माइनस अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली 0.8 है, अल्फा 0.2 है ना. 20% मतलब अल्फा का वैल्यू 0.2 है, वो मैंने सब्सटीट्यूट करके ये डिफरेंस निकाला है. मैं पूछ रहा हूँ ये वैल्यूज डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेंगे क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज ये जो आपके पास है दे आर मोल्स एट इक्विलिब्रियम एंड हियर व्हाट वी सब्सटीट्यूट इज Concentration. so you have to divide the moles by Volume. मैंने स्टार्ट में ही तो बोला टेकन इन अ 2 लीटर कंटेनर. अब क्वेश्चन में अगर 1 लीटर है तो आप मोल्स को ही डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बिकॉज उस केस में इट विल नॉट मैटर. बट अगर वॉल्यूम 1 लीटर के अलावा कोई भी और वैल्यू है, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, देन यहां पर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0.4/2 का होल स्क्वायर. देन ये हो जाएगा 0.8/2 रेस टू 1, ये हो जाएगा 2.4/2 रेस टू 3. दीज आर मोल्स एट इक्विलिब्रियम. तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम के लिए वॉल्यूम डिवाइड करना पड़ेगा ना. तो ये एक वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है. ये मोलार हो गया, 2.4/2 मोलार, 0.4/2 मोलार. समझता है? यस और नो? Yes. So this is how the Kc का वैल्यू could be calculated. आई स्टेबल बनाना है, मोल्स दिया है तो वॉल्यूम डिवाइड करो. 1 लीटर है तो फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट. अदर देन 1 लीटर हो तो डिवाइड करके कॉन्सेंट्रेशन लेकर आओ एंड देन जस्ट सब्सटीट्यूट इन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc. You will get the correct ratio. This is a direct numerical which I have taken. Tables process दिया है, reaction taking place in a 2 liter container with the degree of dissociation 20%. तो उसका Kc का वैल्यू कितना आएगा वो पूछा गया था.
and this is how we are going to solve. ठीक है, इसके साथ मान लो यूनिट्स भी पूछ लिया तो जो भी आंसर आएगा दैट विल हैव द यूनिट्स एज Whole per dm नहीं, minus रेस टू -2 रेस टू डेल्टा एन जी। क्या तो कई बार इसको ब्रैकेट ओपन करके मोल रेस टू -2 डीएम रेस टू 6 ऐसा भी दे सकते हैं। तो यूनिट देखकर भी इनफैक्ट आप करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये शॉर्टकट हो जाएगा। कई बार अगर यूनिट्स में ही मिसमैच है तो जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट्स यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको डेल्टा एन जी को वेरीफाई करना है। क्लियर? चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Let's say I have a reaction of PCl5 gaseous decomposing in a closed container into PCl3 and Cl2 gaseous. अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली लेट्स से द प्रेशर ऑफ PCl5 is P atmosphere. Initially the pressure is P atmosphere. ठीक है, तो PCl3 and Cl2 at the start will have zero partial pressure. अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा तो चेंज कितना होगा? अगेन यहाँ पर अल्फा दिया गया है एज सम वैल्यू 20%, 30% जो भी है। ठीक है, तो नाउ टेल मी विद अल्फा एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 how much will be the partial pressure of PCl3? अरे गधो, अगर एक कॉन्सेंट्रेशन ए की जगह ए अल्फा हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर अगर पी है तो PCl3 का पार्शियल प्रेशर P विद alpha. अल्फा एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ए लिया था, यहाँ पार्शियल प्रेशर पी ले रहा हूं, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो दिस विल बिकम अल्फा पी, दिस विल बिकम अल्फा पी एंड दिस विल बिकम माइनस अल्फा पी। तो इक्विलिब्रियम पे इसका हो जाएगा P माइनस अल्फा पी, this will become alpha p and this will become alpha p. Clear? So if these are the partial pressures directly, then the Kp will be equal to alpha p into alpha p upon P minus alpha p. मतलब the partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 upon the partial pressure of PCl5 और उसकी वैल्यू होगी अल्फा p इंटू अल्फा p अपॉन p इंटू 1 माइनस अल्फा। एक p कैंसिल ऑफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर p अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब विद दिस एक्सप्रेशन वो पूछते हैं कि Kp का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर एज रेस टू 1, 2, 3 या 4। मतलब व्हाट इज द P का पावर? P का पावर यहाँ पर 1 ही है, इसका मतलब अल्फा बीइंग अ कांस्टेंट, यहाँ पर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp is dependent on the partial pressure raised to 1, मतलब it is directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो था पार्शियल प्रेशर दिया है तो कैसे करने का। अब मान लो Kp ढूंढना है and we are again being given the same equation PCl5 giving you PCl3 gaseous and chlorine gaseous और यहाँ पर इनिशियली लेट्स से 2 मोल्स दिया है with alpha का value as 0.4, 40%. Now if you remember Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressure states of matter का, how do we determine partial pressure of a component in a mixture of gases? किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे ढूंढते हैं? Pressure mole to mass. fraction into total pressure.
Perfect. Super. It was mole fraction into the PT, total pressure. And mole fraction in turn is ratio of moles of that gas to the total moles into the total pressure, right? P of A equal to XA. ठीक है, तो अगर मोल्स दिया है तो मोल फ्रैक्शन के थ्रू पार्शियल प्रेशर ढूंढेगा और फिर पार्शियल प्रेशर से Kp को ढूंढेंगे. So how do we solve this type of question? So initially I have 2 moles of PCl5, PCl3 and Cl2 will be 0. Now can you tell me what is the change for PCl3? How much is increased? अरे 4 न्यूमेरिकल बता दिया, सब सेम टाइप के हैं, फिर भी बोलते नहीं हो गधे लोग. Whatever is the moles, 0.8. just multiply by alpha and the stoichiometry. अब इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या बताऊं? थोड़ा तो दिमाग चलाओ. Just multiply the moles with alpha and look at the stoichiometry. अगर 1 है तो डायरेक्टली यहाँ 2 अल्फा होगा, मतलब आई कैन राइट 0.8. यहाँ पर भी 0.8 और यहाँ पर -0.8. अब इक्विलिब्रियम पे मोल्स इसका फाइनल कितना होगा? 2 - 0.8 1.2, ये 0.8 और ये 0.8. So now if I want to find the mole fraction and then the partial pressure, सबसे पहले total moles find कर लो. So total moles will be equal to sum of all of them, that is 2.8. So now the partial pressure of PCl3 and the partial pressure of Cl2 is going to be equal क्योंकि इसके moles same है, and that in turn is 0.8 upon 2.8 into P total. और P total कुछ तो वैल्यू दिया है, 1 atmosphere 2 atmosphere whatever. And partial pressure of PCl5 will be equal to उसका moles upon total moles into the total pressure. अब हमें मिल चुका है सबके partial pressure, तो Kp will be equal to the product of the partial pressure of the products upon the reactant. मतलब this will be 0.8 upon 2.8 into Pt का square upon 1.2 upon 2.8 into Pt. एक Pt का टर्म कैंसिल हो जाएगा and then it's just calculation which can be done. Clear? So with the moles, अगर वॉल्यूम दिया है और Kc ढूंढना है तो we can do the calculation by dividing the moles with volume and getting the concentration. अगर पार्शियल प्रेशर्स ढूंढना है तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके सबके पार्शियल प्रेशर ढूंढो and then find out the value of Kp. These are the different ways in which the numericals are asked. Understood? दूसरी बात, अगर डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल है जिसमें Kp ढूंढना है एंड Kc दिया है, तो the relation we know is Kc into RT raised to delta Ng. अब इस केस में जो R है that is to be substituted in the atmosphere वाला यूनिट. And the value states of matter में दे चुका हूं 0.0821 या approx 0.082 करोगे सब्स्टिट्यूट चलेगा. It was atmosphere, liter atmosphere per mole per Kelvin. Liter atmosphere per mole per Kelvin. Because equilibrium constants में we deal with the volumes in liter and we deal with the partial pressure in atmospheres only. इसलिए हर बार कहीं पे भी Kp Kc के थ्रू आपको रिलेशन यूज करना है तो द R वैल्यू इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन यूनिट ओनली. Okay, and temperature obviously has to be substituted in Kelvin. Never ever you substitute in degrees Celsius in any of the numericals. Is this part clear? Yes.
So up till this, I have given you an overview of equilibrium constants, Kc, Kp, their relation, units, their relation with respect to the reaction, exothermic, endothermic, and different केसेस जहां पर मोल्स दिए हैं या कॉन्सेंट्रेशन दिया है या पार्शियल प्रेशर दिया है, केपी और केसी को कैसे ढूंढना है, आइस टेबल कैसे बनाना है, ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. So once you understand the ice table and you get the concentration or the partial pressure, you can solve any numerical in which Kc or Kp is to be found. Units वगैरह जो है वो सब डेल्टा Ng डिपेंडेंट है. तो डेल्टा Ng अगर आपको पता है तो उसके यूनिट फाइंड कर सकते हो, Kp Kc के रिलेशन के थ्रू आपस में कोई एक अननोन फाइंड कर सकते हो, एंड लॉट अदर थिंग्स आर रिलेटेड विद डेल्टा Ng. क्लियर? कोई डाउट यहां तक? यस, मैंने सब पॉइंट्स कवर कर दिया है सिनॉप्सिस में अप टिल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक में एलसीपी का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में लेने वाले हैं, जिसका मैंने ओवरव्यू ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑलरेडी दे दिया है. उसी को थोड़ा एक लेवल ऊपर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, एंड देन वी विल आल्सो सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, बट अपना नेक्स्ट लेक्चर सीधा संडे को आ रहा है, तो I will advise that you start solving the MCQs of chemical equilibrium. Sit for an hour or 2 hours and try solving the initial part of the chemical equilibrium. मैं मैसेज करता हूँ कहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो. बिफोर द LCP कॉन्सेप्ट जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसका मैंने सिनॉप्सिस यहाँ पर डिस्कस कर दिए. ठीक है, थैंक यू. Thank you.